टू पॉइंट नंबर ए। हेलो, नहीं आया? आ गया। 80. The initial equilibrium is at S1D1. Assume that price of sugar falls. Sugar क्या करेगी चॉकलेट के लिए? रॉ मटेरियल है. Sugar falls and at the same time there is a technological advancement in production of Mars bars. हैं? शुगर फॉल होता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए. प्रॉफिट बढ़ना चाहिए तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए S2. हाँ या ना? और डिमांड में कोई चेंज तो S2 और D1, यस और नो? 8. लेकिन ऑप्शंस में 8 था ही नहीं. ये अगर आप क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस बुकलेट में देखोगे ना, आप इस पे जाके फंसोगे. तो प्लीज रिमेंबर, आंसर इसका 8 है, जो कि वहां पर सही नहीं है. करेक्ट? लॉजिक पकड़ा? अभी समझ में आ जाएगा कि अभी भी दिक्कत जाएगी? है? आ जाएगा? इसलिए मैंने बोला एक पूरा क्वेश्चन 5 करवा देता हूं मैं. ठीक है? इसके बाद मार्केट की सबसे आवश्यक चीजें. एक मिनट, मैंने एक चीज छोड़ के आया. हाँ, ये स्लाइड बड़ी महत्वपूर्ण है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मोर द क्वेश्चंस यू डू द मोर यू रियलाइज यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन इज बिगर और प्योर कंपटीशन इज बिगर? Perfect competition is bigger. Under that, only 3 conditions makes it pure competition. Acha, what is a practical example for perfect competition? Agriculture, online purchase and sale of shares and securities, and purchase and sale of gold and silver. Gold and silver jewelry or only gold silver? Only gold silver, not gold silver jewelry. ध्यान रखना. Okay. So number of sellers many. Product differentiation not at all. Homogeneous product. हेलो. उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट. अच्छा, ये प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर? प्राइस टेकर. ओके. इनका मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या किसी से मैच होता है? सर, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवीसी इज सिमिलर टू सप्लाई कर्व. यस, वेरी गुड. डू यू हैव एनी कंट्रोल ओवर प्राइस? नो, आई डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर प्राइस. P is equals to AR is equals to D is equals to MR. हेलो. ओके. फिर आते हैं हम इसके बाद सीधे मोनोपोली पे चलते हैं, जैसे हम क्लास में भी पढ़े थे. मोनोपोली, नंबर ऑफ सेलर 1. हम है, बाकी सब पानी. अच्छा, मोनोपोली के सोर्सेस टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, यस और नो. पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो सकते हैं. एक क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में, व्हाट अ मोनोपोलिस्ट विल डू. So he will stop, he will create barriers. He will not allow others to come. Correct? ये क्वेश्चन था मॉक में. So number of sellers 1. Product differentiation extremely different. I am a price maker. So my P will be equal to AR but will not be equal to MR. MR will be lower than my AR and MR curve will bisect the area between AR and y axis into 2 equal halves. इस पे भी मॉक में क्वेश्चन था. द MR कर्व कम्स डाउन एट डबल द स्पीड, तभी वो गैप प्रॉपर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. हाफ, कई बच्चों ने हाफ पकड़ा के टिक कर दिया होगा उसमें. कितनों से इसमें गलती हुई थी? ओके ओके ओके, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर नाउ डबल द स्पीड से नीचे आता तभी गैप प्रॉपर क्रिएट होगा. ओके. उसके बाद था price elasticity of demand for firm. जी, anything to ask? Price elasticity of demand generally inelastic. क्या monopoly perfectly inelastic होती है? No, it's not perfectly inelastic. It's inelastic. Control over price है? I am a price maker. Yes. Monopolistic competition. Number of seller 1 या many? Sir, soaps, shampoo, toothpaste, biscuits and all those comes into this category. Product differentiation too much या slight? करेक्ट, स्लाइट. ध्यान रखना. सो होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर हियर. एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रोडक्ट इज हियर. स्मॉल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन a slight is monopolistic competition, and this happens to be the most realistic and the most practically available market form in the world. करेक्ट. उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी,
you have your competitors. If you try to stretch too much, people will leave you. So there is a large price elasticity. Control over price to some extent. Correct? Acha, brand loyalty will be a feature? Of which market? Monopolistic competition. Who will do higher advertisement and selling? Who will have a non-price competition? Non-price competition. Monopoly. Oligopoly will do non-price competition. Galat. Non-price competition is a essential feature of monopolistic competition. फीचर्स में भी लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में. अच्छा, ग्रुप बिहेवियर इज अ टेंडेंसी ऑफ विच मार्केट? इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट? अगेन ओलिगोपोली. ग्रुप बिहेवियर, इंटरडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कॉस्ट, वो सब नॉन प्राइस कंपटीशन एंड ब्रांड लॉयल्टी एसेंशियल फीचर्स. नंबर ऑफ सेलर्स फ्यू, ओलिगोपोली. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल, एक्चुअली इसको होना चाहिए था नन टू सब्सटेंशियल. करेक्ट. एंड प्राइस इलास्टिसिटी, यू डोंट हैव अ फर्म कर्व, हियर यू हैव अ ग्रुप कर्व, कलेक्टिव कर्व. सो इट विल हैव अ किंग्ड डिमांड कर्व. पॉइंट से ऊपर पीपल विल नॉट फॉलो, बिलो द पॉइंट पीपल विल फॉलो. ये भी एक मॉक में क्वेश्चन था. मतलब करते करते तुमने 2-3 बार तो सोच लिया होगा ना, ये सब पढ़ाया नहीं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन दिए इसने हमको. But it would have stretched your mind, and I hope you did it properly. Okay, good. Kinged demand curve. It was given by Sweezy. Sweetie मत कर लेना. Sweezy, ठीक है? And then ये था price rigidity. Correct? Okay. तो अब इसके डायग्राम्स की जरूरत है क्या आपको? एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती डायग्राम्स की इसमें. ये बिहेवियरल प्रिंसिपल भैया बहुत काम का आपके मेरे. कब तक प्रोडक्शन करोगे सर? टिल द टाइम द वेरिएबल कॉस्ट इज कवर्ड. तो शट डाउन पॉइंट और शट डाउन कॉस्ट में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है सर. शट डाउन कॉस्ट वो होती है जब आप प्रोडक्शन को टेम्पररी बंद कर रहे हो, दैट इज शट डाउन कॉस्ट. शट डाउन पॉइंट तब आता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू इवन रिकवर योर वेरिएबल कॉस्ट. ये भी था मॉक में. करेक्ट. सो शट डाउन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर योर सेल्स प्राइस हैज गॉन बिलो योर वेरिएबल कॉस्ट. इट शुड नॉट सो हैपन. कुछ बच्चे सोच रहे क्या बोल रहा है ये आदमी, समझ में नहीं आ रहा है. क्या आ रहा है? आ रहा है ना? ओके. So it is profitable to expand output up to a particular point where marginal revenue is more and marginal cost is less, and it can go up to that point where both are equal. इस पे भी मेरे से बच्चों ने झगड़ा करा व्हाट्सएप पर. सर आपने ना एक क्वेश्चन दिया है हमको, प्राइस इज इक्वल्स टू MC और दूसरे में MR इक्वल्स टू MC. ऐसा क्वेश्चन है और उसमें कॉम्बिनेशन दिए थे मैंने 2 मार्केट के, और उसका आंसर है मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. उसका आंसर है. हाँ, तो उसमें मैं बताता हूँ. एक मिनट लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. देखो, परफेक्ट कंपटीशन में PAR, MR और डिमांड, वो चारों एक है. तो यहां पर आप प्राइस को MC से कंपेयर कर दोगे तो PAR, MR एक ही बात है. मोनोपोली के केस में P और AR तो सेम है, पर MR छोटा है. सो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यू कैन हैव प्राइस इज इक्वल्स टू MC, बट इन केस ऑफ मोनोपोली यू हैव टू डू MR इक्वल टू MC. ये वाली बात समझ में आई या एक बार फिर से बोलूं? एक बार फिर से बोलूं? कोई बात नहीं, आई टेक इट. मेरे को अच्छा लगा था वो क्वेश्चन, मैंने बोला परेशान करो बच्चों को थोड़ा सा इस पे. प्रकाश भाई इधर है, इधर किधर लिखूं बोर्ड पे ताकि आप इधर कवर हो जाएगा. सी मोनोपोली क्या, परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है? P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू D. मोनोपोली क्या बोलता है बेटा? P इज इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू D.
बट डज नॉट इक्वल टू। तो अब अगर मेरे को आउटपुट निकालना है तो आउटपुट निकालना सबके लिए अलग अलग है, वहां फिक्स कंडीशन है MRMC। तो इधर में P इज इक्वल्स टू AC भी कर दूं तो कोई दिक्कत, P इज इक्वल्स टू MC कर दूं तो दिक्कत है क्या? क्योंकि P और MR बराबर है, तो P इज इक्वल्स टू MC करा मतलब MR इक्वल टू MC हो गया। इस केस में क्या करूंगा? इसमें P इज इक्वल्स टू MC कर सकता हूं क्या? नहीं सर। बट क्या मैं इसको MR इक्वल टू MC करूं? तो ये किसकी कंडीशन है? ये किसकी है? सामने वाले ने तुम्हारी समझने की लेवल को क्वेश्चन किया है, उसने ये देखना चाहा कि तुम्हें याद भी है कि नहीं। आया समझ में? ये था मॉक का क्वेश्चन। सर, one of the most important slides of market as far as personally I feel. If you want to understand market thoroughly, this is one of the very important slides. Main points. MR equal to MC बहुत सारे काम करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब इस पॉइंट पे खड़े होकर MRMC कंपेयर कर लो, MRMC पे खड़े होकर ARAC कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा। So if AR is more than AC, what kind of profit you will have? Good to hear. When AR is more than AC, what profit? Super normal. And when AR equals to AC? Normal profit. And when AR is less than AC? Loss. And when AR is more, very much less than AC? Super normal loss. मेरे को मालूम था ऐसा कोई ना कोई बोलेगा, चमाट मारूंगा मैं बता देता हूं। मैंने बोला था खुशी और बहुत खुशी होती है, दर्द और बहुत दर्द नहीं होता, दर्द दर्द होता है। क्लास में ऐसे ही समझाया था, फिर भी गलती करी तुमने अभी। सॉरी बोलो। हाँ, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म। फर्म इससे आगे प्रोडक्शन नहीं करेगी, बिकॉज एवरी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस विल टेक मोर कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी लेसर। इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट। इसको लॉस मिनिमाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण सिचुएशन इस पॉइंट की है पूरे मार्केट में। MR इक्वल टू MC। When MC is equals to AC, ये वही कॉस्ट वाला पॉइंट जो मैं बोला, इट इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट बट द मोस्ट एफिशिएंट, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट बट नॉट द मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट विच इज सीन बाय। समझना, MC इक्वल टू AC तक जाओगे तो AC का मिनिमम पॉइंट पहुंच जाओगे। अब AC का मिनिमम पॉइंट पहुंच जाओगे तो क्या होगा? AC के जब मिनिमम पॉइंट तक पहुंच जाओगे तो क्या होगा? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में क्वांटिटी कम बनेगी या बहुत ज्यादा? तो फिर बेचेंगे कैसे? इसलिए वो ऑप्टिमम आउटपुट है बट मोस्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर शट डाउन पॉइंट बता दिया मैंने। When सेल प्राइस इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, P इज इक्वल्स टू और AR इज इक्वल्स टू VC। यस और नो? शट डाउन कॉस्ट और शट डाउन पॉइंट एक तो नहीं है ना? पक्का? ये रही पूरी समरी। ये चार्ट देखा हुआ लगता है, अपने नोट्स में बना हुआ है पूरा। मैंने क्लास में जब मार्केट्स खत्म किया था तो मैंने बोला था पढ़ना बहुत आसान रहेगा, बाद में समराइज करना तो सिर्फ इतने से समराइज करना, सब कवर हो रहा है इसमें। तुम्हारे नोट्स में तो ये भी बना हुआ होगा, P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू D, और यहाँ नॉट इक्वल टू है ना बेटा? अच्छा, एक्सेस कैपेसिटी किस किस में कंपल्सरीली मिल ही जाएगी? क्वेश्चन तो बोलने दो यार पूरा। एक्सेस कैपेसिटी किस किस में मिल ही जाएगी? ऑप्शन ही नहीं देने दे रहे ये लोग। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने COT का, तो बोथ अपने मन से बना रहा है। एक बारीक बात सब जाने, ध्यान से सुनना। वेरी डेलिकेट पॉइंट, कैन नॉट बी अंडरस्टूड ऑन डे वन। सुन लो सर, इफ यू आर इनटू मोनोपोली एंड योर प्रोडक्ट इज लव्ड बाय मेनी पीपल एंड यू हैव समहाउ क्रिएटेड लाइक नोबडी एल्स कैन मेक दिस, एंड you really don't want to lutify your public. You want to charge a reasonable, handsome and reasonable margin, which people are more than happy to pay you. जरूरी आपका प्लांट अंडर यूटिलाइज रहेगा। मैंने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिर से ध्यान से देना।
excess capacity will compulsorily be there in which market? Perfect competition? No, sir. Oligopoly? No. Monopolistic उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपसे मिलते जुलते हजारों लोग और बना रहे हैं. लेकिन मोनोपोली में क्या है, आप कई बार इतनी प्यारी चीज बना दो और इतनी डिमांड आ जाए कि आपका प्लांट फुल यूटिलाइजेशन तक जा सकता है. हेलो, तो एसेंशियल कंडीशन किसके लिए है एक्सेस कैपेसिटी? मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? पक्का ध्यान रखोगे? हेलो, मतलब चाहो तो ये सेंटेंस कहीं लिख के रख सकते हो भाई, मोनोपोली अगर कस्टमर्स को पसंद हो, वो मतलब अगर कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद है तो मोनोपोली वाला भी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर जा सकता है. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी हमेशा रहेगी. शुड आई रिपीट द सेंटेंस? मोनोपोली का प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक जा सकता है. आया? ठीक है. टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. अच्छा, इससे पहले एक मिनट, वो है ना स्टडी मटेरियल में 2 क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है बच्चों को. सर वो है ना वो टूथपेस्ट इंडस्ट्री का बहुत सारा हमको वो परसेंट, मैं पढ़ के आया हूँ. वो स्टडी मटेरियल में यू हैव अ कंसर्न. सर वो टूथपेस्ट इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन में उन्होंने ना डेंटी पेस्ट, आई डोंट नो इट्स पेस्ट, ऐसे 4-5-7 उनने नाम दिए और आखिरी में अदर्स करके कैटेगरी बनाई और उसमें 29.8% लोग डाल दिए. इन द मोमेंट यू पुट almost 30% of the market in others category, now you don't know it's one player or many players. It may be one or it may be many, and definitely it has to be many because 7-8-10% वाले ऑलरेडी ऊपर आ गए हैं. तो इसका मतलब सिर्फ वन प्लेयर है, फ्यू प्लेयर्स है, मेनी प्लेयर्स हैं. And when there are many players, you cannot have oligopoly. It has to be monopolistic competition. You need to correct the module on that particular point. वो जो परसेंटेज ऐसे दिए हुए ब्रेकअप्स, उसमें शायद आंसर उन्होंने ओलिगोपोली दिया हुआ है, उसको आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना पड़ेगा. उसी मॉड्यूल के क्वेश्चंस में पीछे अगले पेज पे जाके ही फिर एक क्वेश्चन आता है टूथपेस्ट इंडस्ट्री. तो वो टूथपेस्ट इंडस्ट्री को वहां वो सही जवाब देते मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो प्लीज रेक्टिफाई दैट इन योर माइंड एंड एज वेल एज इन योर मॉड्यूल कि वो अपने को चेंज करना है. ठीक है. उसके बाद हाँ, ये 1-2 पॉइंट्स मेरे ध्यान में थे. सर प्योर ओलिगोपोली के अंदर ऑलमोस्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट आएगा. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. डिफरेंशिएटेड के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट करेंगे, बाकी सिमिलर प्रोडक्ट निकलेगा. टेलकम इंडस्ट्री. ओपन ओलिगोपोली व्हेन एवरीबडी इज अलाउड टू कम एंड गो, नो रेस्ट्रिक्शंस आर देयर. क्लोज्ड ओलिगोपोली, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. Collusive oligopoly, they come to a common understanding and act in collusion with each other to fix price output. मिलकर प्राइस और आउटपुट डिसाइड कर, तू इतना बनाएगा इस प्राइस पे, मैं इतना बनाऊंगा इस प्राइस पे. थोड़ा सा करप्ट माइंडसेट होता है, ये बेईमानी करने के इंटेंशंस नजर आते हैं यहाँ पर. कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, व्हेन देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड देयर इज नो क्लियर लीडर, दे कॉम्पिट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली. Partial or full oligopoly, that means here one person is leader, others are followers. So full oligopoly, like Parle-G in biscuits, or in glucose biscuits specifically, not full biscuits but glucose biscuits. Full oligopoly, market is conspicuous by the absence of, nobody is leading price, everybody is doing their own style of working. Syndicated, हम सब इकट्ठे होकर बेचने का काउंटर कॉमन किया. देखो लिखता वो, वेयर द फर्म सेल्स द प्रोडक्ट्स थ्रू अ कॉमन सेंट्रलाइज सिंडिकेट. यूजुअली दवा बनाने वाली कंपनियां एंड शराब वाली कंपनियां, लिकर काउंटर्स एंड मेडिसिन काउंटर्स.
ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑर्गेनाइज्ड और कोल्यूसिव में. In organized, people don't come on a common platform. They decide and make association and rules. Correct? But they don't act in collusion. No mala fight. Wrong intention नहीं है. Practice question में कहा होगा which of the following is an example of oligopoly? और ऑप्शन में एक OPEC था. OPEC. OPEC is nothing but oil and petroleum exporting countries. Yes, it's an oligopoly. Why? Because there are only few nations who have got oil for sale. Correct? Price discrimination. Sir, when you try to charge different prices to different customers and the basis of charging different prices is not cost but due to reasons other than cost, that is called price discrimination. Yes or no? Sir, 4 conditions for price discrimination. Number 1, there is a possibility of market division. Number 1. Number 2, there are different price elasticity in different markets. The customer of one market will not go into another market. और चौथा एक और था. हाँ, there is some monopoly power. 4 conditions were there. Correct? So then you have 3 degrees of price discrimination. First degree, when you try to take away the entire consumer surplus. Second degree, when you do it on quantities. And third is based on locations. Yes or no? और आपको याद दिलाया था कि बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत सारी क्वांटिटी बनाते थे, एक साथ बेचते हैं, रुक रुक के बेचते हैं. सो दे प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. करेक्ट? फिर एक ये भी आता है छोटा सा. सर इस पे भी क्वेश्चन आता है कई बार. सर if AR is this, find out MR. बच्चा बोलता है ये क्या हुआ? And elasticity is this. तो बेसिकली वो फॉर्मूला है MR is equals to AR into E minus 1 upon E. अब आप समझ के देखो, अगर ये more than 1 है, let's say 3, तो 3 minus 1 होगा 2, 2 divided by 3. तो जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव आने वाला है. सोच के भी तो देख लो लॉजिकली. भाव गिराने पर रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा या कम होगा? अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है और भाव गिराओगे तो खूब सारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा. और अगर डिमांड इनइलास्टिक हुई, लेस देन 1, और तुमने कीमतें गिराई, तो तुम्हारे ग्राहक उतने बढ़ने वाले. सो व्हाट विल हैपन? द ओवरऑल रेवेन्यू विल कम डाउन. ये लाइन समझ में आई? रिपीट करूं? फिर से सुनो, पीछे बातें नहीं. इफ आई एम रिड्यूसिंग द प्राइस, there has to be a very good jump in my demand to increase my sale. A very good jump means more than 1. So tomorrow if I give you आज 2000 रुपए का एक पेयर ऑफ जीन्स बेच रहा हूँ और 10 जीन्स बेचता हूँ दुकान से, तो 20,000 का रेवेन्यू आता है. वो पेयर ऑफ जीन्स 10 की जगह अगर मैं फ्लैट 40% ऑफ कर रहा हूँ तो 2000 का 1200 ले रहा हूँ आपसे. नाउ माई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड शुड गो अप ना. भाई सेल लगाने का पर्पस क्या था? अगर उतने ही कस्टमर आए तो कल तक 2000 देके जा रहे थे, आज 1200 देके जा रहे हैं, तो मेरा तो नुकसान हो गया. समझ में आया? सो व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर एंड देन यू रिड्यूस प्राइसेस, सो द एक्स्ट्रा रेवेन्यू विल गो अप. एंड व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस, व्हाट विल हैपन? इफ आई रिड्यूस द प्राइस, कस्टमर्स डोंट इंक्रीज, आई विल लूज माई रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा. एंड इफ इट इज 1, तो 1 minus 1 0 हो जाएगा. ऊपर 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर 0 आएगा. मतलब जितना प्राइस रिड्यूस किया एग्जैक्टली उतने कस्टमर्स बढ़े, तो कोई चेंज इन रेवेन्यू नहीं आएगा. आप पढ़ के देखो, समझ में आना चाहिए. मतलब सिंपल थिंग टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला. हुआ? हेलो सर. इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक्चुअली क्या, सबसे पहले आप पढ़ते हो मेरे साथ परफेक्ट, और बाकी जितने भी मार्केट्स पढ़ते हो वो सब इम्परफेक्ट की ही ब्रांच में है. पढ़ो इसको. इन इकोनॉमिक थ्योरी, इम्परफेक्ट कंपटीशन इज द कंपटीशन सिचुएशन इन एनी मार्केट वेयर द कंडीशन नेसेसरी फॉर परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट सैटिस्फाइड. इन मार्केट स्ट्रक्चर दैट डज नॉट मीट द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ये रहे इतने सारे. मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. पहले 3 तो बहुत नॉर्मल है, नीचे के 3 पढ़िए. बोले हैं मैंने क्लास में. मोनोपोली, सिंगल सेलर की जगह सिंगल बायर. ओलिगोपोली में फ्यू बायर्स.
और फिर एक होता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ये क्या चीज होती है सर? इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब होता है कि कुछ प्लेयर्स के पास बहुत सारी जानकारी है तो वो अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, और कुछ के पास बहुत कम जानकारी है, सो इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री। क्लियर? ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मेरे को याद दिलाने थे। फॉर एनी डिफिकल्टीज, two options, you can give me a WhatsApp on 80853, my same number, which always is there. You've been receiving so much of ज्ञान from there. November 18 नहीं, November 18 नहीं, November 19 लिखना चाहिए था ना मुझे। हाँ, गलती कर दी मैंने, ऊपर से ही लिखा है। If you need to send an email, क्योंकि most of the people log out from WhatsApp before exams. Ideally you should, because WhatsApp and Instagram are like blood suckers. खून पी जाते हैं, टाइम सकर्स आई में से। सो इफ यू गो बैक एंड इफ यू वांट टू सेंड एन ईमेल, एक ध्यान रखना, बच्चे ईमेल में गलती करते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं लिखते ईमेल का, और मेरे को बहुत सारे ईमेल रोज आते हैं, फिर मैं इग्नोर कर जाऊंगा उनको। उस बस सब्जेक्ट पे लिख के भेजने का, सीए फाउंडेशन नवंबर 19, तो मुझे ध्यान रहेगा एग्जाम रेस क्वेरी आई है। एंड प्लीज डोंट सेंड अ क्वेरी लाइक दिस, सर मार्केट समझा दो। Some people send query, sir पढ़ाई कैसे करूं? What kind of a query is this? So please make sure. ठीक है, एक तो ये था, हवाबाजी करनी पड़ती है ऐसी आजकल, बट मेरे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ, आई एम टेकिंग क्वेश्चंस। करेक्ट। तो ये तो हो गया अपना इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पोर्शन हो गया, पर अपना बीसी के पे भी बात कर लेते थोड़ी सी। करेक्ट? सो यू हैव द स्टैमिना ना? हाँ हाँ, एक मिनट।